Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So we were discussing about the format of technical report. Okay, so we are going to continue the structure of technical report from the last class. Okay, so last class में basically we did see about basic. First we did list all the structure that is involved in the making of a technical report, that involves title page, executive summary, introduction, methodology, then results and findings, discussion, conclusions, recommendation, appendices, and bibliography. Okay, then we looked at how the title should be. That title should determine what we choose to read. Avoid incomplete titles. Name and title of the person receiving the report should be written. Then name and title of the preparer should be there. Okay. Then date should be mentioned in the report. Then note about confidentiality, whether the given report is confidential or not, that should be mentioned. Distribution list should be there. Reference number should be there. Then we discussed about abstract. That what is an abstract is. An abstract can also be called as synopsis or executive summary of a longer report. Then abstract can be divided into two categories, descriptive as well as informative. And the descriptive ones are usually only a few sentences, and informative ones are the standalone documents with all the key points. The abstract is often read first in a report. Abstract is always read first in a report. Then we discuss the points to write effective abstract. That is synthesis of report's key point, offers an overview of the report, include facts, conclusions, and recommendations. It is usually limited to 1 page and does not include visuals. Write your abstract. Once we have to write our abstract only when the report is complete. Use your final outline as a guide and reread and highlight the report. Then we discuss the questions what we need to ask while writing an abstract. Okay, why should the reader be care about the problem and what are the results? What is the problem statement and purpose of the technical report? And what is the problem that you are trying to solve? What is the scope of investigation, result and analysis? Steps followed to collect your research. Important variable considered. Statistics included, and what is final conclusion and if any follow-up is required. Main subject. Then we discuss about introduction. That introduction must contain the main subject. Background it should have need, limitations, problem overview, report's purpose, study's importance, organization. Okay. Then in introduction what we should include is why was the report written, how were the data collected, what sources were used, what limitations were encountered, what is the report scope, what background information is needed, key terms to be explained, how is the report arranged and why was the arrangement used, and we do not include results. Okay. So ये सब हमने पिछले क्लासेस में देखा था. अब हम इस क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट वी स्टार्ट विद मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी देखो बेसिकली मेथड और लॉजी, मेथड्स की स्टडी. आप एक तरीके से इसको इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो मेथड्स, जो भी रिपोर्ट हम जिस भी ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं उसके लिए जो मेथड्स अप्लाई करने वाले हैं उन सबको हमें यहाँ पे लिखना है. ठीक है, बेसिकली ये मेथड्स कैसे होने चाहिए, ये बेसिकली लॉजिकल होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए और सिक्वेंशियल होने चाहिए. लॉजिकल देखो कोई भी साइंटिफिक मेथड है आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलना चाहिए. जैसे कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में देखा उसके बाद में देखा कि आपने लिटरेचर करके देखा, यानी कि उससे रिलेटेड और भी पहले किसी ने कुछ काम किया यानी किया, या बैकग्राउंड क्या है उस प्रॉब्लम का वो जानने की कोशिश की, और अगर किसी ने उस प्रॉब्लम पे काम किया है तो क्या उसका सोल्यूशन निकाला है या नहीं. उसके बाद में आप अपना एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट्स निकालोगे और एक्सपेरिमेंटेशन करोगे, फिर रिजल्ट्स निकालोगे. तो इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस में ये आपका जो मेथड्स हैं वो चलने चाहिए. ठीक है, और अनबायस होने चाहिए. ऐसा नहीं हो कि एक तरफा हो, आपने सोच लिया कि मुझे अगर इसको अच्छा बनाना तो इसको अच्छा बनाना, नहीं, जो फैक्ट है आपको वो उसको दिखाना है. और सीक्वेंशियल हो. ठीक है, देन एक्यूरेट होना चाहिए. डेफिनेट सी बात है कि आपके जितने भी मेथड्स हैं उनके जो भी आंसर्स होंगे दैट शुड बी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट मेथड आपको यूज करना है. ऐसा कोई मेथड मत यूज करो जो आपको
प्रोबेबल रिजल्ट्स दे, कोशिश करो कि दैट यूज दोज मेथड्स विच विल गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट्स, वैलिड रिजल्ट्स एंड रिलायबल रिजल्ट्स. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू कलेक्टेड द डेटा. बेसिकली मेथोडोलॉजी में आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, आइदर किस कौन कौन से मीन्स से या फिर कौन कौन से स्रोत से आपने जो भी डेटा है वो कलेक्ट किया है, वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो. देन टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स, कितने टाइम से कितने टाइम पे आपने क्या काम किया, इतने टाइम से इतने टाइम पे क्या काम किया, दैट ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट इन योर मेथोडोलॉजी. देन डेटा कलेक्शन इवेंट्स यू कैन मेंशन. Then primary and secondary sources can be mentioned. Survey and questionnaire details. Basically, अगर आप कहीं पे भी रिसर्च करने जा रहे हो तो आप सपोज करो किसी के पास में गए तो आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रख दिए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे. वो सर्वे हो गया एक तरीके से. और क्वेश्चनेयर भी आप बना सकते हो, कई सारे क्वेश्चंस बना दिए. किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च एनालिसिस करने के लिए आप क्वेश्चनेयर बना सकते हो. आप ईमेल के थ्रू क्वेश्चनेयर भेज सकते हो. कई तरह के हमारे, तो जो भी मेथड आपने यूज किए हैं या जो क्वेश्चंस आपने यूज किया फिर उसके बाद में क्या रिस्पॉन्स आया, वो डिटेल्स वगैरह आप इसमें डाल सकते हो मेथोडोलॉजी में. देन रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स में आगे व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डिस्कवर. तो आपके एक्सपेरिमेंट के बाद में एग्जैक्टली आपको क्या आंसर मिला है ना, वो हम रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स में बताएंगे. देन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स, उनको हम ग्राफिकली, जैसे कि हमने रिजल्ट्स निकाले उसके बाद में उसको ग्राफिकली प्लॉट कर दिया. तो लेट अस सपोज कि हमारा एक्सपोनेंशियल कुछ कर्व आ रहा है, तो बेसिकली एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक्सपोनेंशियल है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यूजुअली रिग्रेशन एनालिसिस करूंगा. तो अगर देखूंगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आती है तो ये कह सकता हूं कि हाँ ये एक्सपोनेंशियल के बराबर है. तो इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं हम और आगे के फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इन द रिजल्ट्स. ठीक है. देन वी हैव टू बी कंसाइज, ओके, एंड यूज लॉजिकल लैंग्वेज. ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज लॉजिकल लैंग्वेज. यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट डेटा यूजिंग विजुअल मेथड्स. हम लोग टेबुलेट कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और उनसे भी हम अपने आइडियाज को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कशंस. इन दिस सेक्शन यू कैन एक्सप्लेन व्हाट द अबव रिजल्ट्स मीन. जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो क्या मीन करते हैं. ये देखो यूजुअली कई रिपोर्ट्स में रिजल्ट्स और डिस्कशन एक साथ होता है, कई में रिजल्ट्स और डिस्कशन अलग अलग होते हैं. तो बेसिकली इस सेक्शन में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो भी रिजल्ट्स आपने निकाले हैं उनका क्या मतलब है. देन यू कैन ऑल्सो एनालाइज, इंटरप्रेट एंड इवेल्युएट डेटा, नोट ट्रेंड्स एंड कंपेयर द रिजल्ट्स विद द थियरी. आप उसको एनालाइज कर सकते हो, उसे इंटरप्रेट कर सकते हो, इवेल्युएट करने के बाद में ट्रेंड्स को नोट डाउन करके और जो थियरी आपने लिखी थी उससे कंपेयर कर सकते हो अपने डेटा को. ठीक है. बी कंसाइज, अगेन यूज लॉजिकल लैंग्वेज एंड यू कैन ऑल्सो प्रेजेंट डेटा यूजिंग विजुअल. ओके. नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मेक अ क्लियर लाइन बिटवीन रिजल्ट, कंक्लूजन एज वेल एज रिकमेंडेशन. तो रिजल्ट, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन में क्या डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो उसको पता होने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को लेता हूं. सपोज करो आपने कुछ सोचा, आप घर पे बैठे हो, ठीक है, और आपका दिमाग में आया कि आपको आज सामान कुछ खत्म हो गया घर पे और आपको लेके आना है. तो आपने 3-4 चीजें अपने दिमाग में सोची होंगी और आप यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज सम शॉपिंग मॉल, यहाँ चले गए अब. ठीक है. और आपने सारी शॉपिंग कर ली. लेकिन जब आप घर आते हो तो यू सी कि आधे से ज्यादा चीज जो आपने सोची थी वो आप वहां पे भूल गए हो और बेफजूल की चीजें भी आप खरीद के ले आए हो. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम है. सो दिस इज द रिजल्ट. और इस रिजल्ट में क्या हुआ, आपका पैसा ज्यादा खर्च हो गया और जो चीज आपको चाहिए थी वो आपने नहीं लेके आए. ये क्या हो गया मेरा, और ये किस वजह से हुआ. दिस इज आवर रिजल्ट, दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ शॉपिंग. ठीक है. हमने शॉपिंग की, उसका रिजल्ट ये आ गया. ठीक है. अब ये ऐसा रिजल्ट आया क्यों भाई, बिकॉज हमने कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं बनाई थी. ठीक है. और एट अ टाइम इंपल्सिव सोच के अपने आप को कुछ भी वहां पे आके खरीद लिया था. तो ये उसका हो गया कंक्लूजन. एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर अगली बार मुझे ये चीज नहीं रिपीट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज मटीरियल्स. सारे मटीरियल्स की मैं लिस्ट बनाऊंगा और उसी लिस्ट पे स्टिक करूंगा. दैट इज मेरा रिकमेंडेशन. ठीक है. किसी एक एक्सपेरिमेंट में जो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, रैंडमली आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक रिजल्ट आ गया. अब वो रिजल्ट किस वजह से आया है, दैट विल बी रिकमेंडेशन. ठीक है. और दैट विल बी कंक्लूजन.
ठीक है, और उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए या ठीक करने के लिए आप जो भी ओपिनियन दोगे दैट विल कम अंडर रिकमेंडेशन. सो बेसिकली वी कैन डिवाइड व्हाट हैज हैपेंड एज फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स हम कह सकते हैं, जो भी हुआ है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स. व्हाई इट हैपेंड उसको हम कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड व्हाट शुड बी डन दैट शुड बी कम अंडर रिकमेंडेशन. ठीक है, सो बेसिकली कंक्लूजन विल में आप फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है, अवॉइड ऑब्वियस स्टेटमेंट, जितनी भी ऑब्वियस स्टेटमेंट हैं उनको अवॉइड कीजिए. देन इन रिकमेंडेशन ऑफर रिकमेंडेशन ओनली इफ यू आस्क्ड टू डू सो. अपना सुझाव तभी दीजिए जब आपको बोला गया हो रिपोर्ट बनाते हो कि आप उसमें अपना रिकमेंडेशन दिए हैं. और फोकस ऑन फ्यूचर. ठीक है, देन ऑफर अ सपोर्टेड ओपिनियन. ऑलवेज ऑफर अ सपोर्टेड ओपिनियन. इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया, उस पॉइंट्स को लेके आपको ओपिनियन बनानी है. ठीक है, कंसाइज रखो, स्पेसिफिक रखो, रियलिस्टिक रखो. ठीक है, कंसाइज देखो हर चीज में, यहाँ पे रिपोर्ट में आप जब भी बात करो तो हमें कंसाइज रहना बहुत जरूरी है. लेकिन ये भी होना चाहिए, कंसाइज में क्या होता है, शॉर्ट वर्ड्स में या शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको अपनी मैक्सिमम बातें कहनी है. देन स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी चीज के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हो. लेट अस सपोज कि आपने एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई और एक पावर प्लांट में आप थे. ठीक है, तो आपने कहा था कि पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत कम है, इसकी एफिशिएंसी आपको बढ़ानी होगी, तो इस पे ध्यान दें. तो इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट यू शुड से दैट पावर प्लांट में कौन से पार्ट में एफिशिएंसी कम है जिसकी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है या एनर्जी यूसेज ज्यादा हो रहा है, उसको हमें स्पेसिफाई करना चाहिए. सो वी हैव टू बी स्पेसिफिक और रियलिस्टिक होना चाहिए. ऐसा कुछ ओपिनियन ना दो कि बस सपनों की दुनिया दिखा दी कि ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा कर लो. नहीं, जो रियलिस्टिक फैक्ट है वही आपको इसमें दिखाना है. देन यूज ऑफ एक्शन वर्ब. ठीक है, यहां पे एक्शन वर्ब्स का आप इस्तेमाल करो, जैसे कि इम्प्लीमेंट है ना, मेक. जैसे कि इम्प्लीमेंट, आप एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी. ठीक है, सो दिस इम्प्लीमेंट इज एन एक्शन वर्ब. ठीक है, तो इस तरह का रिकमेंडेशन आप दे सकते हो. देन अपेंडिसेस में बेसिकली हम लोग जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम जो रीडर को चाहते हैं कि रीडर अगर और ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उस तरीके से जो एक्स्ट्रा पेजेस है, मतलब पेजेस एक्स्ट्रा जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हो, वो अपेंडिसेस में आ जाएगा. देन लोकेटेड, यूजुअली रिपोर्ट के लास्ट में लोकेटेड होता है. फोटोज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप इसमें एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो. देन आप इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हो, जितनी भी चीजें हैं. देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह दे सकते हो आप इसमें. ठीक है, मैप्स को आप यहाँ पे दिखा सकते हो, विजुअल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं. देन मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो वो कैसे कैसे मैन्युफैक्चर हुआ वो प्रोडक्ट. ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन आप पीछे चाहो तो दे सकते हो. देन कैलकुलेशंस, जितने भी आपने वहां पे डेटा एनालिसिस किया है, जो भी चीजें की हैं, सिमुलेशन किया है, जो भी किया है, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो आप लास्ट पेज में दिखा सकते हो. देन ड्राइंग यू कैन शो ओवर देयर एंड यू कैन से ओवर देयर कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड यू शुड लेट योर रीडर नो दैट देयर इज अ सप्लीमेंट मटेरियल इन द अपेंडिसेस. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे लग रहा है ना कि एक स्टेटमेंट आपने लिखी है, आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट रीडर समझ नहीं पाएगा, तो आप उसके आगे एक स्टार मार्क कर दो और नीचे लिख दो रेफर, जिस भी अपेंडिसेस में आपने उसको डाला है, अपेंडिक्स ए लेट्स से, फॉर मोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो बेसिकली अपने रीडर को आप इन्फॉर्म कीजिए दैट देयर इज अ सप्लीमेंटल मटेरियल इन द अपेंडिक्स. ठीक है, और बिब्लियोग्राफी बेसिकली जितने भी रेफरेंसेस आपने यूज किए हैं उस काम को करने के लिए वो बिब्लियोग्राफी में आ जाएगा. ठीक है, सो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे खत्म होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.